Hello students, today we will discuss about the pathology. So in this chapter, first of all we will discuss about what is pathology, then the factors affecting the doses of drugs and their actions, and then about the children doses and their calculations, about the maximum dose of various drugs along with their routes of administration and uses, and regarding veterinary doses and factors affecting them. So next we will study about the maximum dose of various drugs used for domestic animals along with their routes of administration and uses. In the structure we will discuss about the introduction to pathology. Uh, then the factors affecting the dosage and action of drugs in human. The factors we will study will be the age, body weight, sex, route of administration, time of administration, presence of disease, environmental factors, emotional factors, accumulation, synergism, antagonism, habituation, addiction, idiosyncrasy, and hypersensitivity and tolerance. So next will be tachyphylaxis, and in case of pediatric dosage, we will study the doses calculation, and then the dose proportionate to age, doses proportionate to body weight, and doses proportionate to surface area. And then we will study the introduction to veterinary doses and factors affecting it. First will be age, next will be body weight and size, then next third will be sex, fourth will be time of administration, fifth will be route of administration, sixth will be climatic condition, then the environmental factors, then the habit, species, synergistic or antagonistic effect, form in which drug is given, and purpose of medication and rate of elimination. So first of all, let us see what is the definition of the pathology. So the word pathology is being derived from the Greek words. So it means it is made up of posos, that means how much, and logos mean science. So it is a branch of medicine which deals with the doses of the drug. So एक pathology क्या है, एक branch है medicine की जो drug की doses के साथ deal करती है. So the therapeutic dose is the quantity of drug which maintains the minimum effective concentration of drug in the system. So इसी में हम क्या देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे दी थेरापेटिक डोज वो क्या होती है, जो मेंटेन करती है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग गिवन in the system. So if the drug crosses the toxic level, it may show its toxic effects, and if does not reach the minimum effective concentration, the dose is supposed to be under dose and desired therapeutic effect will not obtain. इसका मतलब क्या है कि जब आपने डोज देनी है और अगर वो रिक्वायर्ड लेवल से आप ज़्यादा दे दोगे डोज एक विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें क्या होता है कि ड्रग अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करती है. क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है इन द प्लाज्मा. लेकिन अगर आप जो रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन है उससे कम कंसनट्रेशन दोगे ड्रग की, देन द डोज इज सपोज टू बी अंडर डोज. मतलब क्या है अंडर डोज का मतलब क्या है, जो उसकी रिक्वायर्ड डोज लेवल है उससे कम डोज दी गई है. सो इसमें क्या होगा, जो हमें डिज़ायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट चाहिए वो दैट विल नॉट बी ऑब्टेन. So the pharmacopoeia provides the minimum and the maximum dose of the drugs which can be referred as and when required. So अभी हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ड्रग की डोज कितनी मैक्सिमम दे सकते हैं और कम से कम कितनी दे सकते हैं. दैट विल बी provided by the pharmacopoeia. So there are various pharmacopoeia available in
available. That means Indian Pharmacopoeia, that is published by the Indian Pharmacopoeia Commission. उसके बाद हमारे पास है US Pharmacopoeia, उसके बाद आता है यूरोपियन फार्माकोपिया एंड जापानीज फार्माकोपिया एक्सेट्रा. सो ये क्या है, एक रेफरेंस है ड्रग्स के बारे में, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि मिनिमम लेवल किसी ड्रग के बारे में जो उसमें दी गई है, कितनी आप मिनिमम डोज दे सकते हो और कितनी आप उसकी मैक्सिमम डोज दे सकते हो. So these doses of drugs are not binding to the physician because physicians can modify the dose depending on various factors which affect the dose and action of the drugs. So अभी हम क्या देखेंगे, factors influencing dose. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डोज को इफेक्ट करते हैं ड्रग की? एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ डिसीज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, अकमुलेशन, साइनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, हैबिचुएशन, एडिक्शन, आइडियोसिनक्रेसी, हाइपरसेंसिटिविटी, टॉलरेंस एंड टैकीफाइलेक्सिस. सो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द एज. एज का क्या इफेक्ट होता है ड्रग की डोज पे? सो एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डोज एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग. सो एज क्या है, किसके साथ कंसर्न होती है? इट इज़ कंसर्न विद द कैपेसिटी ऑफ मेटाबोलाइजिंग और एक्सक्रीटिंग द ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी. सो जनरली जो क्या होते हैं, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल ड्यू टू देयर लेस कैपेसिटी ऑफ सच फंक्शंस रिक्वायर लेस डोज ऑफ ड्रग देन एन अडल्ट रिक्वायर्स. क्या होता है, एज किसके साथ कंसर्न होती है? हमारी कैपेसिटी. कौन सी कैपेसिटी? ड्रग को मेटाबोलाइज करने की या उसको एक्सक्रीट करने की फ्रॉम द बॉडी. सो जो चिल्ड्रन होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं, उनमें क्या होती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म फंक्शन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा, उनमें हमें चाहिए लेस डोज चाहिए ड्रग की एज कम्पेयर टू द अडल्ट. सो दिस इज़ नॉट ट्रू इन द केस ऑफ बिकॉज चिल्ड्रन कैन टॉलरेट relatively large dose of digitalis and belladonna on the basis of high rate of metabolism. Infants do not tolerate and are highly sensitive due to their immature physiological functions of liver and kidney. Okay, so next important factor is body weight. So जो क्या है, ये एक बहुत important फैक्टर है in case of the doses of the drug. So weight of body is considered as a key factor on the theory that the concentration of drug at its site of action will often be influenced by the size of the patient, and hence heavily built patient requires larger dose than a normal weight patient. इसमें क्या है, कौन सी थ्योरी काम करती है बॉडी वेट जब हम डोज के साथ कैलकुलेट करते हैं? ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो होती है एट इट्स साइट ऑफ एक्शन, इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? साइज ऑफ द पेशेंट. जितना ज़्यादा साइज होगा, हो सकता है वो उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन ड्रग को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे. सो जो हैवली बिल्ड पेशेंट होते हैं या ओबीज पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें लार्जर डोज चाहिए होती है ड्रग की एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल पेशेंट. सो जो 70 ग्राम का पेशेंट है, उसको 70 केजी किलोग्राम का पेशेंट है, हम उसको क्या मानते हैं? नॉर्मल वेट मानते हैं अडल्ट पेशेंट का. सो इसमें क्या करेंगे, हम डोज फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ वेट, दैट मीन्स mg पर kg ऑफ बॉडी वेट. सो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सेक्स. सो देखिए, जो सेक्स होता है दैट कैन बी ऑफ ओनली टू टाइप्स, मेल और फीमेल. जो भी पेशेंट होगा या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा. सो दोनों क्या करते हैं, दे अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन वेट, फिजिक, respective nature of drugs and certain physiological phenomena.
सो जनरली जो फीमेल होती है उसमें कितनी डोज चाहिए होती है, दैट इज ओनली 85% ऑफ डोज इज रिक्वायर्ड इन फीमेल्स देन द अडल्ट मेल। तो एक 70 किलोग्राम के अगर आदमी को, अडल्ट पेशेंट है जो, उसको अगर 100 mg ड्रग की रिक्वायरमेंट है, तो अगर सेम एज की अगर हम एवरेज पेशेंट लें जो अडल्ट फीमेल पेशेंट है, उसको ओनली 85 ग्राम ऑफ ड्रग इज मोर देन सफिशेंट। सो इसमें क्या होगा कि फीमेल्स को 85% ड्रग चाहिए एज कम्पेयर टू द मेल पेशेंट। So the dose of females must be moderate during their menstruation, pregnancy and lactation period. For example, strong purgatives, that are example are aloes. They are to avoided during menstruation. Drugs like anticholinesterase and ergot stimulate contraction of uterus are to be avoided during pregnancy, and some drugs like morphine, antihistaminics, and tetracyclines excreted through mother's milk are to be avoided during lactation period। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल से हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स को हम मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में हम अवॉइड करते हैं कि इस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली ये ड्रग्स हमने नहीं देनी है। सो जैसे कि एग्जांपल दी गई है, मॉर्फिन, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं और साथ में टेट्रासाइक्लिन है। इसको हम लैक्टेशन पीरियड में नहीं दे सकते हैं क्योंकि दे कैन बी और दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू मदर्स मिल्क। सो जब वो मिल्क में एक्सक्रीट हो रहे हैं, दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू द इन्फेंट। सो some drugs are avoided during these conditions। सो जैसे कि मॉर्फिन है, अल्कोहल है, एनेस्थेटिक गैसेज हैं, बार्बिट्रेट्स हैं, ये क्या कर सकती हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में जा सकती हैं। सो दैट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन फीटस। सो समटाइम्स क्या हो सकता है, इससे क्या होगा कि समटाइम्स दिस विल बी रिजल्ट into the in the death of the fetus। So therefore deciding the dose depending on the sex becomes very much significant when a patient is female and that too pregnant in her menstrual period or a mother। So next is route of administration। So there are many routes of administration like oral route, rectal route and parenteral route। So the particular route is selected on the basis of severity of the disease। इसमें क्या है कि देखो हमारे पास बहुत सारे रूट्स हैं, जैसे oral रूट है, रेक्टल रूट है, बक्कल रूट है। तो रूट्स को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी ड्रग किस रूट से पेशेंट को देनी है, ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिविरिटी ऑफ द डिसीज़। सो अगर हमें कोई रैपिड थेरापिट एक्शन चाहिए डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करेगा, पेरेंटल रूट देगा, मीन्स कि आईवी इंजेक्शन देगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो टैबलेट तो ले नहीं सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। सो अगर हमें रैपिड रिजल्ट चाहिए तो अगर हम पेरेंटल रूट दे रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई ड्रग एब्जॉर्प्शन नहीं है। सो ड्रग इज डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो सो इसमें क्या होगा, सो द रेट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इंक्रीजेज विद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, दैट इज ओरल सबसे कम रेट ऑफ ड्रग ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, सबसे कम होता है ओरल में, फिर जाता है वो सबक्यूटेनियस में, फिर जाता है इंट्रामस्कुलर में, फिर इंक्रीज होता है रेक्टल में, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन रेट होता है आईवी में। सो आईवी में हमें क्या देना पड़ता है, और इसका अगर हम वाइस वर्सा देखें तो आईवी में सबसे कम डोज देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द ओरल। क्योंकि अगर हम कोई ड्रग ओरल रूट से ले रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल क्रॉस द जीआईटी ट्रैक। सो जीआईटी ट्रैक में क्या होता है,
एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से ड्रग डैमेज हो सकती है और वहाँ से अब्जॉर्ब होकर हो सकता है ड्रग कैन अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसमें क्या होगा कि ड्रग अब्जॉर्ब होने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि हमें डोज की ड्रग की जो है डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो ये सारा जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। सो और एक और, जितना कोई ड्रग जितना ज़्यादा टाइम लेके अब्जॉर्ब करने के लिए, सो मोर द डोज इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। सो इसीलिए कोई भी ड्रग की अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अलग अलग डोज होती है। सो वी कैन डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर द ट्राइफ्लूओप्रोमाजिन HCl ड्रग। सो अगर हम इसको ऑरली देते हैं, इक्वलेंट टू 30 to 150 mg ऑफ ट्राइफ्लूओप्रोमाजिन डेली देनी पड़ती है। IM देते हैं तो 5 to 10 mg रिपीटेड एवरी 4 आवर्स। IV देते हैं तो 1 to 3 mg हर every repeated after every 4 hours. So depending upon the route, dose of drug is decided. So उसके बाद आता है time of administration. So the time of administration of drug is also important. So एग्जाम्पल इसकी देख सकते हैं हम कि अगर वेदर गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक और आफ्टर द मील्स, इसमें क्या देख सकते हैं कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन केस ऑफ डोज में, कि ड्रग हमें खाली पेट देनी है, एम्प्टी स्टमक देनी है और आफ्टर मील्स देनी है। सो कोई भी ड्रग अगर हम एम्प्टी स्टमक लेंगे वो क्या होगी और ज़्यादा रैपिडली अब्जॉर्ब होगी एज कम्पेयर टू द फुली स्टमक। सो अगर कोई हम ड्रग आफ्टर मील्स देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो सकती है। सो समटाइम्स ड्रग गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक कॉज इरिटेशन बट कैन बी टॉलरेटेड व्हेन गिवन आफ्टर मील्स। लेकिन कुछ ड्रग्स के साथ क्या होता है कि अगर हम उनको एम्प्टी स्टमक देते हैं तो क्या हो सकता है, वो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जो भी ड्रग्स एम्प्टी स्टमक में इरिटेशन कॉज कर सकती हैं उनको हम आफ्टर मील्स ले लेते हैं, जस्ट आफ्टर मील्स और 30 to 60 मिनट्स आफ्टर मील। एग्जाम्पल हो सकते हैं इसकी क्लोरोक्वीन, फॉस्फेट, आयरन एंड एस्पिरिन एटसेट्रा। सो पेशेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, दे शुड बी एडवाइज प्रॉपरली अबाउट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स टू ऑब्टेन द एब्सोल्यूट थेरापेटिक इफेक्ट आउट ऑफ द डोज प्रिस्क्राइब। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पेशेंट्स को प्रॉपरली गाइड करना पड़ता है कि ये इसकी कितनी डोज लेनी है आपने और किस टाइम लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेनी है या आफ्टर मील्स लेनी है, इन द मॉर्निंग, इवनिंग। एग्जाम्पल इज लाइक एपिटाइजर गिवन बिफोर मील, जैसे एपिटाइजर होते हैं वो मील से पहले देने होते हैं। डाइजेस्टेंट जो होते हैं वो आफ्टर मील्स देने होते हैं। सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स। सो नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ डिसीज। इसमें क्या होता है, हायर डोज ऑफ ड्रग्स कैन बी टॉलरेटेड इन डिसीज कंडीशन ऑफ द पेशेंट देन इन नॉर्मल पेशेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो हाई डोजेज हैं ड्रग्स की वो टॉलरेट कर सकता है पेशेंट देन इन नॉर्मल कंडीशन। सो फॉर एग्जांपल वन कैन टॉलरेट मोर डोज ऑफ एंटीपायरेटिक्स देन इन ए नॉन फेब्राइल कंडीशन। अगर किसी पेशेंट को बुखार है तो वो ज़्यादा हाई डोज एंटीपायरेटिक्स की टॉलरेट कर सकता है। So similarly, when there is the condition of hepatic and renal disturbances, the drugs are not metabolized properly and a combination of drugs can be occurred even if normal dose is given. So it is dangerous condition which may prove to be fatal. So the dose of drug for deceased patients must be decided on the basis of the condition of the patient and the type of disease they have. So next is environmental factors. So in case of environmental factors, they affect the dose of the drugs due to some physiological changes in the body functioning. So for example,
dose of barbiturates required to produce sleep during daytime is much higher than the dose required to produce sleep in night. So consumption of alcohol enhances the effect of CNS depressant, and alcohol induces hepatic enzymes and cause rapid metabolism of certain drugs. Conversely, hepatic injury due to alcohol can increase the sensitivity to drugs. So impaired capacity of body to oxidize the drug at high altitude prone the condition of drug toxicity. So therefore, the dose of the drug must be decided on the basis of environmental condition of the patients. So next we have is emotional factors. So sometimes emotional factors they also govern the dose of drug. So such type of conditions are usually found in psychosomatic disorders. इसमें क्या होता है दे आर इसमें क्या होता है कि इमोशनल फैक्टर है जो वो भी आपकी ड्रग की डोज को इफेक्ट कर रहा है. जैसे कि फीमेल्स आर मोर इमोशनल एंड रिस्पॉन्सिव टू द ड्रग्स रिक्वायर लेस डोज ऑफ द ड्रग्स. सो द पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर में इन्फ्लुएंस द पेशेंट फॉर हिज अर्ली रिकवरी. ये भी हो सकता है देखिए कि पर्सनैलिटी जो है डॉक्टर की वो भी पेशेंट को इफेक्ट कर सकती है. सो सच फेथ ऑन माइंड ऑफ द पेशेंट may affect the efficiency of the dose of the drug. So placebos are known to produce therapeutic benefit in conditions like angina pectoris and bronchial asthma. So 50 mg to 100 mg dose of chlorpromazine is sufficient to produce tranquilization, but a schizophrenic patient may require even 500 mg to 1000 mg of chlorpromazine. Next factor accumulation. So accumulation of drug in the body is the result of slow excretion, defective degradation, or unexpected rapid absorption of the drug. Accumulation किस चीज़ का रिजल्ट है? अगर एक्सक्रीशन स्लो हो चुकी है, डिग्रेडेशन हो नहीं रही है, दैट इज डिफेक्टिव, और एक रैपिड अब्जॉर्प्शन दैट इज अनएक्सपेक्टेड, इसकी वजह से अकम्बुलेशन हो सकती है. सो अगर किसी ड्रग की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो गया दैट कैन कॉज द टॉक्सिक इफेक्ट्स लाइक डिजिटालिस, एमिटीन एंड हैवी मेटल्स. सो इफ सच कंडीशंस टेक प्लेस ओनली मेंटेनेंस डोज ऑफ ड्रग शुड बी कंटिन्यू टू अवॉइड फर्दर अकोमोलेशन. सो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? ओनली मेंटेनेंस डोज लेकर हम फर्दर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशन हैं हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. सो अगर कम्बुलेशन का हमने अवॉइड करना है सो वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग मेजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, फेट ऑफ द ड्रग मस्ट बी नोन. सो सेकंड विल बी discontinue prescribing drug at the appearance of the first warning symptom. Third will be carefully select the correct form of the drug. And fourth will be check liver and kidney function before taking or prescribing the drug. Next is synergism. So when the potency and duration of action is increased by the concomitant use of two or more drugs, the phenomena is called synergism. So synergism आगे दो टाइप्स का, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एडिशन एंड पोटेंशिएशन. सो व्हेन द टोटल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ टू ड्रग इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं एडिशन. कि अगर एक ड्रग का जितना एडिशन है दोनों का इंडिविजुअली जो इफेक्ट है, अगर उन दोनों को कंबाइन कर दें तो उसका इफेक्ट उतना होगा जो उन दोनों का इंडिविजुअली है. सो पोटेंशिएशन क्या है? व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ टू ड्रग्स इज मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट्स. पोटेंशिएशन में क्या होगा कि अगर हम कॉम्बिनेशन में कोई दो ड्रग्स दे रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो उन दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट के सम से भी ज़्यादा है. सो ये जो फैक्टर है दैट इज सिनर्जिज्म, it governs the dose of individual drug of the combined therapy depending on the types of synergism. So many examples like streptopenicillin injection, etherchloroform anesthetics, and kyline pectin, phenytoin adrenaline act effectively as compared to individual drug therapy. So that is all for the day.
on tomorrow we will continue this chapter. Thank you.